This is Pastor John Vignes from Apple Valley, Minnesota, and my wife Julia. And with me, I'll be preaching the message in English, but with me is Pastor Persis Hannah from India, and she'll be translating the message into Hindi. और आप सभी को जय मसीह की। और मैं पास्टर जॉन विगिंस मिनेसोटा से अपनी पत्नी के जूलिया के साथ और हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे पास्टर पर्सिस इंडिया से। The title of the message is, I will be thou clean. I will be thou clean. और आज का जो वचन है, उसका जो टॉपिक है, हमारी अगली सीरीज का जो टॉपिक है, उसका मतलब है मैं चाहता हूं कि तुम शुद्ध हो जाओ। The key portion of scripture comes from Mark chapter 1, verses 40 through 45. But there came a leper to him, and kneeling down to him, and saying unto him, If you will, you can make me clean. And Jesus, moved with compassion, put forth his hand and touched him, and said unto him, I will, be thou clean. And as soon as he had spoken, immediately the leprosy departed from him, and he was cleansed. And he charged him, and forthwith sent him away, and said unto him, See that thou say nothing to any man. Go your way, show yourself to the priest, and offer for you cleansing those things which Moses commanded for a testimony unto them. But he went out and began to publish it much, and to blaze broad the manner, insomuch that Jesus could no more openly enter into the city, but was without in desert places, and they came to him from every quarter. और जो हम आज का वचन देखेंगे, हमारा जो वचन है वो मरकुस रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय का 40 वचन से हम पढ़ेंगे 45 तक। एक कोढ़ी उसके पास आया, उसने उससे विनती की कि उसके सामने घुटने टेक कर उससे कहा, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। उसने उस पर तरस खाकर हाथ बढ़ाया और उसे छूकर कहा, मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा। और तुरंत उसका कोढ़ जाता रहा, वह शुद्ध हो गया। तब उसने उसे चिताकर तुरंत विदा किया और उससे कहा, देख, किसी से कुछ मत कहना, परंतु जाकर अपने आप को याजक को दिखा और अपने शुद्ध होने के विषय में जो कुछ मूसा ने ठहराया है उसे भेंट चढ़ा कि उस पर गवाही हो। परंतु वह जाकर इस बात का बहुत प्रचार करने और यहाँ तक फैलाने लगा कि यीशु फिर खुल्लम खुल्ला नगर में ना जा सका, परंतु बाहरी जंगल स्थानों में रहा और चारों ओर से लोग उसके पास आते रहे। Verse 40 says, There came a leper to him. It says, There came a leper to him. There came a leper to him. और 40वां वचन इस प्रकार से बताता है कि एक कोढ़ी उसके पास आया। इस प्रकार से वचन बताता है कि एक कोढ़ी जिस पर कोढ़ लगा हुआ था वो उसके पास आया। I want to emphasize the leper came to Jesus. He came. His mother, father, or family did not come to Jesus for the leper. He came. His best friend did not come to Jesus for the leper. He came. His pastor, elder, rabbi, or priest did not come to Jesus for the leper. He came. और मैं इस बात पे जोर डालना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो है एक कोढ़ी आया, जिसको कोढ़ लगा हुआ था। उसके माता पिता नहीं आए, उसके परिवार वाले नहीं आए, उसका याजक नहीं आया, उसका दोस्त नहीं आया, उसका कोई गुरु नहीं आया, उसका कोई बड़ा नहीं आया, लेकिन जिसको कोढ़ लगा था वो आया। Sometimes God uses people in our lives to bring about miracles, but it seems there are some miracles that will only happen if we come. If you need salvation, Jesus wants you to come. If you need healing, Jesus wants you to come. If you need a miracle in your relationships, Jesus wants you to come. Whatever you need, Jesus wants you to come. Jesus wants you to come, not someone else. Jesus wants you to come. और कभी कभी क्या होता है कि परमेश्वर जो है कुछ लोगों को हमारे पास चमत्कार के लिए लेकर आता है, परंतु कई बार यदि हमें चमत्कार चाहिए तो हमें जो है उसके पास जाना पड़ता है। यदि हमें उद्धार चाहिए तो हम परमेश्वर के पास जाएंगे। यदि हमें चंगाई चाहिए तो हम उस खुदा को देखेंगे। यदि हमें हमारे रिश्तों में कुछ चमत्कार चाहिए तो भी हम परमेश्वर को देखेंगे। तो जो कुछ भी हमें चाहिए उसके लिए हमें यीशु मसीह चाहता है कि हम उसके पास जाएं। Verse 40 says the leper came to him. The leper came to him. The leper came to Jesus. It doesn't say that the leper came to the best doctor that money could buy. It says he came to Jesus. It doesn't say that the leper came to the famous
Mayo Clinic in Minnesota, it says he came to Jesus. It doesn't say that the leper came to any man. It says that he came to Jesus. और 40वां वचन इस प्रकार से कहता है कि एक कोढ़ी जो है यीशु मसीह के पास आया, एक कोढ़ी यीशु मसीह के पास आया। उस इस प्रकार से नहीं लिखा कि जो है वो जो डॉक्टर के पास गया, बहुत जो वहां का फेमस जो वैद्य था उसके पास गया, लेकिन इस प्रकार से लिखा है वो यीशु मसीह के जो कोढ़ी था वो यीशु मसीह के पास गया। There are some sicknesses and diseases that doctors cannot cure. Only Jesus can. There are some hurts and scars way down on the inside of you that counselors and psychiatrists can't heal. Only Jesus can. What about the sickness of a man's spirit or your soul because of sin? Who is the only one that can forgive your sins and heal your soul or save you? Jesus. और ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जिसे कोई डॉक्टर या जिसे कोई क्या कहते हैं कोई भी साइकोलॉजिस्ट और कोई साइकियाट्रिस्ट और कोई काउंसलर उसको ठीक नहीं कर सकता है, लेकिन केवल और केवल यीशु मसीह उसको ठीक कर सकता है। कई बार जो ये बीमारियां होती है वो पापों की वजह से भी होती है, तो केवल परमेश्वर वो पाप क्षमा के द्वारा ही हमें ठीक कर सकता है। तो कुछ कुछ चीजों को, इवन हर एक बातों को परमेश्वर ठीक कर सकता है, यीशु मसीह। The leper came to Jesus because he needed a miracle. Do you need a miracle? Come to Jesus. He's waiting for you. जो कोढ़ी था उसको एक चमत्कार की जरूरत थी, इसलिए वो यीशु मसीह के पास गया। और यदि आप उनमें से एक हैं जिन्हें चमत्कार की आज जरूरत है, तो आज आपका परमेश्वर इंतजार कर रहा है। Verse 40 says the leper came to Jesus. The leper came. और 40वां वचन इस प्रकार से कहते हैं, कोढ़ी उसके पास आया, किसके पास? यीशु मसीह के पास। I want you to understand the condition of the man that came to Jesus. It says he was a leper. The leper is described in Luke chapter 5 and verse 12. In Luke, it says this man was full of leprosy. It had spread over his entire body. He was leprous from head to foot. और मैं चाहता हूं कि आप इस बात को समझें कि ये जो बीमारी है ये क्या है, ये जो कोढ़ है वो क्या है। ये लूका रचित सुसमाचार उसके 5 के 12 में इस प्रकार से लिखा है कि एक मनुष्य, 12वां अध्याय में पढ़ेंगे, जब वह 5वां अध्याय 12वां वचन लूका रचित सुसमाचार, जब वह किसी नगर में था तो वहां कोढ़ से भरा हुआ एक मनुष्य आया और यीशु को देखकर मुंह के बल गिरा और विनती की, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। Pastor Persis, I can't see your picture. Yeah, there is little bit net issues, but no Okay. problem. I can hear you. Okay. This means the man was in the last stages of this disease, even near death. In the last stages of leprosy, body parts such as fingers or toes, or even his nose or lips, had been eaten away. This often happens when lepers are in the last stages of this horrible disease. और जब हम यहाँ पर इसको देखते हैं तो ये इस बात को हम समझ पाते हैं कि वो कोढ़ से भरा हुआ, यहाँ पर लिखा है कोढ़ से भरा हुआ था, तो इसका मतलब वो कुछ आखिरी लास्ट स्टेजेस, आखिरी क्षणों में था अपनी इस बीमारी के। और इस बीमारी में क्या होता है ना, जैसे जैसे इस बीमारी का स्तर बढ़ता है तो आपके हाथ पैर जो है अंदर घुस जाते हैं, खा लिए जाते हैं। It is तो said that इस most तरह की lepers, चीजों को हम यहाँ पर देखते हैं। it is said that most lepers are filled with an unbearable odor because of the flesh that's dying, rotting, or being eaten away. और हम देख सकते हैं कई बार जो ये कोढ़ी जो होता है, कोढ़ की ये जो बीमारी है, कई बार इसमें से एक अजीब तरह की दुर्गंध को हम पाते हैं, क्योंकि इसमें जो है खाल जो होती है, त्वचा जो होती है वो सड़ जाती है या त्वचा खा ली जाती है एक कुछ के द्वारा और सड़ने लगती है। This was the condition of the leper that came to Jesus. There was no human cure. Jesus was his last hope. No man could heal him. Is that where you're at? You need a miracle? Jesus is your last hope? Come to Jesus. और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो ऐसी परिस्थिति में यीशु मसीह के पास आया जब उसे कोई मनुष्य चंगा नहीं कर सकता था। यीशु मसीह जो है उसकी आखिरी उम्मीद थी, कोई व्यक्ति उसको हील नहीं कर सकता था। तो आज मैं आपसे पूछना मांगता हूँ कि आज क्या आप उसी एक परिस्थिति में हैं कि आपको भी एक चमत्कार की जरूरत है, यीशु मसीह आपकी आखिरी उम्मीद है, तो आप यीशु मसीह के पास आए।
The physical healing the leper needed was not the only problem the leper had. The leper had a deeper, more serious problem. It is called sin. In the Old Testament, leprosy was looked at as a curse of God because of sin. और यहाँ पर जो है खाली जो है शारीरिक चंगाई एक विषय नहीं था। यहाँ पर जो है खाली शारीरिक चंगाई के लिए हम नहीं देखते हैं। यहाँ पर एक और गहराई वाला और एक बहुत ही सीरियस एक बात को हम यहाँ देखते हैं, वो है पाप। क्योंकि जब हम पुराने नियम में पढ़ते हैं कोड के बारे में, तो ये एक तरह का श्राप है परमेश्वर की ओर से पाप जो करता है। Actually, the physical look of leprosy, the missing body parts, the missing fingers and toes, the missing nose and lips, the horrible smell of rotting flesh being eaten away, this is a picture of the sickness of our spirit because of sin. This is what your spirit looks like if you're not saved. There is no cure for sin except Jesus. और यहाँ पर हम देखते हैं जब इस कोड़ जैसा किसी व्यक्ति के अंदर कोड़ लग जाता है, तो क्या क्या शरीर में होता है, उसके जो शरीर के हिस्से होते हैं वो खत्म होना शुरू हो जाते हैं। उसकी उंगलियां, उसके आंख या नाक या कान वो खत्म होना शुरू हो जाते हैं उसमें, क्योंकि वो खालों के द्वारा, त्वचा के द्वारा खा लिया जाता है। उसकी मृत त्वचा के द्वारा इतनी गंदी एक बदबू को वहां पर हम महसूस करते हैं, देख सकते हैं। तो इसी तरह का बात, ये एक तरह का दृश्य है हमारा आत्मिक जीवन के बारे में, कि हमारा जीवन भी, आत्मिक जीवन भी इस तरीके से हो जाता है जब हम पाप में पड़ते हैं। हमारा आत्मा इसी तरीके से दिखता है जब हम पाप में होते हैं। यहाँ पर कोई और इस पाप को क्षमा नहीं कर सकता यीशु मसीह के अलावा। Maybe you feel you are clean from your sins because of your good works. Not so. Only Jesus can pronounce a sinner clean. Maybe you feel that you're clean for your sins because of the church or denomination you belong to. Not so. Only Jesus can pronounce a sinner clean. Maybe you feel that because you were baptized as a baby, or you went to confirmation as a young person, or you confessed your sins to a priest, you are clean. Not so. Only Jesus can pronounce a sinner clean. और मैं आपको बताना मांगता हूँ कि हो सकता है आप ये सोचते हैं कि मैं शुद्ध किया गया हूँ, मैं पापों से मेरे पापों को मुझसे दूर किया गया है क्योंकि मैंने बहुत अच्छे काम किए हैं। तो ऐसा नहीं है, केवल यीशु मसीह ही आपके पापों को धो सकता है। अगर आप सोचते हैं कि मेरे पापों को धोया गया है क्योंकि मैं अच्छे एक चर्च से और अच्छी डिनोमिनेशन से बिलोंग करता हूँ, तो ये भी नहीं है, क्योंकि केवल यीशु मसीह ही पापों को धो सकता है। और हो सकता है आपको लगता हो मैं बचपन में जब बच्चा था तो मैंने जो है बैप्टिज्म लिया और वहां पर मैंने जो है उसके बाद जवान हुआ तो मैंने बोल दिया और पादरी के सामने पापों को अंगीकार कर लिया, तो अब मैं बिल्कुल साफ हूँ। तो ऐसा नहीं है, केवल यीशु मसीह के द्वारा ही पापों को धोया जा सकता है। If you're not saved, if your spirit is sick because of sin, come to Jesus. There is no human cure. Jesus is the only cure. और यदि आप बचाए नहीं गए हैं और यदि आप भी आत्मिक रूप से बीमार को महसूस करते हैं, तो ये एक पाप का कारण है। तो इसके लिए यीशु मसीह के पास आइए, क्योंकि कोई भी मनुष्य इसे ठीक नहीं कर सकता, केवल यीशु मसीह ही इसको ठीक कर सकता है। Notice in this scripture, Jesus did not say, I will be thou healed. Jesus said, I will be thou clean. Again, Jesus did not say, I will be thou healed. Jesus said, I will be thou clean. Jesus was dealing with something more serious than a physical healing. As bad as that was, Jesus was dealing with sin because of his horrible physical condition. And because leprosy was thought to be a curse from God because of sin, he was rejected and no one would touch a leper. और यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि तू चंगा हो जा, यीशु मसीह ने उससे कहा कि तू शुद्ध हो जा। मैं एक बार और दोहराते हूँ इस बात को कि यहाँ पर जो यीशु मसीह, उसने ये नहीं कहा
कि तू इस बीमारी से चंगा हो जाए, परंतु ये कहा कि तू शुद्ध हो जाए, क्योंकि यीशु मसीह ये जानता था कि यहाँ पर एक शारीरिक चंगाई से भी बढ़कर एक बात है, वो है यीशु मसीह वहां देख पा रहा था पाप को, क्योंकि ये जो भी उसके शरीर का फिजिकल, जो भी उसका शारीरिक कंडीशन था, वो जो कुछ भी था, वो जो कोड था, वो परमेश्वर की ओर से था, पाप की ओर से था। वो पाप को जब उसने किया तो वो श्राप के रूप में उसको मिला, वो जो है रिजेक्टेड हो गया, और कोई भी उसको छू नहीं सकता था। ऐसा एक नियम था कि कोई उसको छुएगा नहीं, उसके पास नहीं जाएगा। This is what a leper had to do. His clothes were rent. This meant that his garment or robe had to be split up the back to the hem at the neck. It is kind of like our modern hospital gowns. The torn gown signified his utter lack of righteousness. और हम यहाँ पर देखते हैं कि उधर उसको क्या करना पड़ता था, कोड़ी को, उसका जो कपड़ा था, उसके कपड़े के बारे में यहाँ पर हम कुछ बातों को मैं आपको बताना मांगते हैं कि जो उसका कपड़ा था वो गर्दन से लेके नीचे तक था, जैसे कि जो हॉस्पिटल के जो गाउन्स होते हैं वैसे, और वो इस तरीके दिखाता है कि जो धार्मिकता की कमी को उसके जीवन में दिखाता है। His head was bare. This meant that he was naked to the judgment of God because of sin. The men of Israel were to wear a little cap, which signified the Lord was their protection. The leper could wear nothing on his head, signifying that he had no protection. He was naked to the judgment of God. और उसका जो सर था, उसके ऊपर वो सर में कुछ ढका हुआ नहीं था, क्योंकि यहूदी लोगों में एक नियम होता है कि वो यहूदी जो लोग होते थे, वो अपने सर पर एक छोटे से एक कैप को, एक कपड़े को रखते थे, लेकिन इसके सर पे एक कोड की वजह से कुछ नहीं रख सकता था। तो यहाँ पर ये दिखाता है, वो जो कपड़ा जो था, वो दिखाता था परमेश्वर की जो प्रोटेक्शन है, परमेश्वर के जो प्रोटेक्शन को दिखाता था। और यहाँ पर वो जो कोड़ी था वो नहीं पहन सकता था, इसका मतलब कि उसके ऊपर जो परमेश्वर का प्रोटेक्शन नहीं था उस समय पर, और वो जो है परमेश्वर के न्याय के लिए खड़ा था। A leper had to put a covering on his lip and cry, unclean, unclean, unclean. Anytime a leper came within 100 feet of a person, he had to shout, unclean, unclean, unclean. Whenever someone claims his salvation is due to anything other than putting his faith in Jesus and what he did at the cross, whether they realize it or not, they are in effect crying, unclean, unclean, unclean. और जो कोढ़ी होता था उसको क्या करना होता था, अपने होठ को, अपने चेहरे को ढकना होता था, और चिल्लाना होता था, रोना होता था, अशुद्ध अशुद्ध अशुद्ध। और यदि कोई व्यक्ति उसके 100 फीट के आसपास आता था तो फिर वो चिल्लाता था ताकि लोग सचेत हो जाएं, अशुद्ध अशुद्ध अशुद्ध। जब भी ऐसा कुछ होता था तो वहां पर जो है कोढ़ी इस तरीके से लोगों को सचेत करते थे, ये अशुद्ध बोलकर, ताकि लोगों को समझ में आए कि ये एक कोढ़ी व्यक्ति है जिसके पास जो है नहीं जाना है। तो बहुत बारी जो है हम लोग अपने जो उद्धार को हम जो है दूसरे के द्वारा हम जो है क्लेम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमें अपना विश्वास यीशु मसीह और जो उसने क्रूस पर किया उस पर रखना है, ना कि किसी और बात पर। The leper had to dwell alone. He could dwell with other lepers, but he could live with no one else. This signifies the terrible loneliness of sin, being cut off from God. और यहाँ पे हम एक और बात को देखते हैं कोढ़ी के जीवन में। ये सारे नियम हैं जो कोढ़ियों के लिए बनाए गए थे, कि जो कोढ़ी होता था वो केवल कोढ़ी लोगों के साथ ही रह सकता था, अन्य लोगों के साथ नहीं रह सकता था। इसका मतलब कितना अकेलेपन था पाप की वजह से, और परमेश्वर से दूरी को हम यहाँ देखते हैं। Now, do you understand the condition of the leper that came to Jesus? He was physically sick, he was spiritually sick. Not only that, he was rejected, he was hurt, he was lonely. Nobody would touch him. और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो कोढ़ी का जो सिचुएशन था, जो परिस्थिति थी, वो कैसी थी। जो यीशु मसीह के पास आया, वो आत्मिक रूप से और वो शारीरिक रूप से बीमार था, और खाली यही नहीं, खाली बीमारी नहीं था,
वो उसको रिजेक्ट किया था, वो परेशान था, वो दुखी था, वो टूटा हुआ था, वो अकेला अकेला था और कोई उसे छू नहीं सकता था। Have you ever been there, rejected, hurt, lonely? No one will touch you. Come to Jesus. और मैं आपको पूछना माँगता हूँ, क्या आप कभी ऐसी परिस्थिति में पड़े हैं? कोढ़ वाली परिस्थिति में नहीं, परंतु आपने कभी रिजेक्शन को देखा है, आप कभी दुखी हुए हैं, अकेलेपन में हुए हैं, ऐसा हुआ है कि कोई आपको छू नहीं सकता, आपके पास नहीं आता, आपके करीब नहीं आता, तो यीशु मसीह के पास आइए। In Leviticus chapter 14, verses 1 through 7, there is the law for leprosy or cleansing if a person had leprosy. और हम लेवी व्यवस्था में पढ़ते हैं, उसका 14वाँ अध्याय 1 से 7 में एक नियम है जो कोढ़ियों और उसको साफ होने के लिए बनाया गया है। These are the steps that had to be taken. The leper would be brought to a priest. By taking a leper to a priest, it showed the problem was spiritual and not physical. The priest represented a type of Jesus. A leper or sinner was brought to Christ. Jesus was his only hope, and we must bring lepers, we must bring sinners to Jesus. और यहाँ पर हम देखते हैं सबसे पहला नियम क्या बताया गया है कि जो कोढ़ी है उसको जो वहां का याजक है उसके पास लेकर जाया जाए ताकि वो उसकी परेशानी को उसके कोढ़ को दिखाए और ये दिखाती है खाली कुछ शारीरिक बात नहीं है आत्मिक रूप की बात है तो यहाँ पर जो याजक है वो यीशु मसीह को दिखाता है और हर एक कोढ़ी मतलब हर एक पापी को यीशु मसीह के पास आना चाहिए क्योंकि यीशु मसीह ही केवल एकमात्र आशा है। तो हमें कोढ़ियों को जो यहाँ पर पापियों को दिखाता है, वो हमें उनको यीशु मसीह के पास लाना चाहिए। And then it says, the priest shall look. There was a thorough inspection of the leprosy. Only Jesus can see and deal with your sin. Only Jesus can pronounce a sinner clean. और इसके बाद इसका दूसरा जो स्टेप है वो ये है कि जो याजक था वो उस कोढ़ को देखता था। तो जैसा कि मैंने बताया याजक जो है यीशु मसीह को वहां पर दिखाता है, वो वहां पर बहुत ही ज्यादा गहराई से वो कोढ़ को देखता था। इसका मतलब क्या है कि यीशु मसीह वो जो हमारे पाप को बहुत गहराई से और सही तरीके से उसको देखता है और उसके साथ डील करता है। केवल यीशु मसीह हमें वो पाप से धो सकता है, निकाल सकता है। There were two live birds. The Old Testament ceremony was meant to portray the death and resurrection of Christ. One bird would be sacrificed, representing the death of Jesus on the cross. One bird would live, representing the resurrection of Christ. और यहाँ पे 2 पक्षियों को भी हम देखते हैं अगले स्टेप में। पुराने नियम में एक ऐसा इसको देखते हैं वो परमेश्वर वो यीशु मसीह के मृत्यु को और पुनरुत्थान को दिखाता है। उसमें लिखा है जो हम पढ़ेंगे जब आप इसको पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है 2 पक्षियों के बारे में, एक को बलि किया जाना चाहिए और दूसरे को जीवित रखना चाहिए। तो जो बलि किया गया है वो यीशु मसीह को दिखाता है, उसने क्रूस पर जो किया और दूसरा जो पक्षी है वो यीशु मसीह के पुनरुत्थान को दिखाता है। And clean, two pigeons or turtle doves were mentioned as sacrifices. And clean represents the fact that Jesus was the perfect, sinless sacrifice. Jesus never sinned. और यहाँ पर शुद्ध 2 पक्षियों के बारे में और दिखाया गया है, कबूतरों के बारे में दिखाया गया है कि जो है वो जो उसको वो साफ को शुद्धता को दिखाता है। एक पूर्ण रूप से जैसे यीशु मसीह जो है पूर्ण रूप से कोई उसमें दोष नहीं था, बिल्कुल पवित्र था, वैसा उसने बलिदान किया ऐसा दिखाता है। जी, पर यीशु मसीह ने कभी पाप नहीं किया था। In cedar wood, this represents the cross Jesus would die on. और यहाँ पर जो लकड़ी है वो दिखाता है क्रूस को जिस पर यीशु मसीह मारा गया। And scarlet represents the shedding of Jesus' blood.
और वहां पर जो लाल रंग है वो दिखाता है यीशु मसीह के लहू को। And hyssop, this was a type of branch that was used to dip into the blood of the sacrifice. A sop or hyssop branch was offered to Jesus on the cross. और यहाँ पे जो लकड़ी को दिखाया गया है वो एक तरह का वो जो है वो लकड़ी को यहाँ पर दिखाता है कि जो यीशु मसीह को उस समय में जो वहां पर दिया गया था जूफा करके वो दिया गया था वहां पर वो दिखाता है। One of the birds shall be killed. This points to the coming sacrifice of Jesus on the cross. और यहाँ पर ये बताया गया है कि एक पक्षी जो है उसे बलि किया जाना चाहिए और ये यीशु मसीह के उस बलि को दिखाता है। In an earthen vessel, this speaks of Jesus' human body, Jesus' human vessel that would be offered as a sacrifice on the cross. और यहाँ पर एक पात्र को दिखाया जाता है जो यीशु मसीह के शारीरिक शरीर के बारे में बताता है कि यीशु मसीह एक पात्र के रूप में अपने आप को अपने जीवन को दे दिया और अपने जीवन को बलि किया क्रूस पर। Overrunning water, this refers to the Word of God. Jesus obeyed the Word of God when he died on the cross for us. और बहता हुआ पानी जो है वो ये दिखाता है परमेश्वर के वचन को कि यीशु मसीह ने परमेश्वर के वचन को आज्ञा माना और वो क्रूस पर अपने प्राणों की बलि को दिया। The living bird represents the resurrected Christ. और जो जीवित पक्षी है वो दिखाता है यीशु मसीह के पुनरुत्थान को। And then it says, he shall take it, the living bird, and the cedar wood, and the scarlet, and the hyssop, and shall dip them and the living bird in the blood that was killed over the running water. The living bird represented the resurrection of Christ. The dead bird represented the sacrifice of Jesus on the cross. और यहाँ पे इस प्रकार से हम वचनों में देखते हैं, इस प्रकार से लिखा है उसने जीवित जो है पक्षी को लिया और जो है वहां पर उसने उस लकड़ी को भी लिया, वो एक रंग को भी लिया, पानी बहता हुआ पानी भी है और उसमें उस एक पक्षी को मारा। तो जो जीवित पक्षी है वो पुनरुत्थान को दिखाता है, जो मरा हुआ पक्षी है वो यीशु मसीह के क्रूस पर कुर्बान होने को दिखाता है। And he shall sprinkle upon him, I believe that's the blood of Christ, that is to be cleansed of the leprosy 7 times. 7 is God's number, and that symbolizes perfection. It means that the sacrifice of Christ on the cross was a perfect and complete remedy for sin. और यहाँ पर देखते हैं कि छिड़काव को हम देखते हैं 7 बार। तो ये जो छिड़काव है ये यीशु मसीह के लहू को दिखाता है। 7 बार 7वां जो 7 नंबर है वो परमेश्वर का जो है नंबर है वो पूरी तरह संपूर्णताई को और पूर्णता को दिखाता है। The price that Jesus paid on the cross was so complete, it never has to be offered again. It paid for all sins, past, present, and future. The sinless sacrifice of Jesus on the cross was perfect. और ये जो है यीशु मसीह के उस चीज को दिखाता है जो यीशु मसीह ने वो जो कार्य क्रूस पर किया, बलिदान किया, वो पूर्ण है, वो संपूर्ण है और वो पूरे पाप जो भूत में किए गए, जो भूतकाल में किए गए, जो अभी किए गए और आने वाले समय में किए, उन सभी के लिए यीशु मसीह ने एक बार कीमत को चुका दिया। And pronounce him clean. Remember, the priest represented Jesus. It is only Jesus who can pronounce a sinner clean. और वहां पर वो उसको शुद्ध घोषित करता था और ये मसीह है जो केवल हमें शुद्ध घोषित कर सकता है, शुद्ध कर सकता है। And shall let the living bird loose into a field. The loose bird represents the sinner who accepts Christ and is cleansed, washed, saved, and set free by the power of God. और जो पक्षी था, जो जीवित पक्षी था उसको जो है छोड़ दिया जाता था और ये जीवित पक्षी जिसको छोड़ दिया जाता था वो जो है पापी मनुष्य को दिखाता है जिसने यीशु मसीह को ग्रहण किया, वो उसके द्वारा धोया गया, साफ किया गया और फिर परमेश्वर में आजाद हो गया।
come to Jesus and be cleansed, washed, and saved and set free by the power of God. और यीशु मसीह के पास आए, धोए जाए, शुद्ध किए जाए, बचाए जाए और परमेश्वर में आजाद हो जाए। Although the law of Moses provided for the cleansing of a leper, do you know that in the Old Testament, before Jesus died on the cross, there was a record of only 3 people being cleansed from the sin of leprosy? Naaman, the Syrian general, in 2 Kings chapter 5, verses 10 and 14. Miriam, she was Moses' sister. When she became critical of Moses, she came down with leprosy, but was healed when Moses prayed for her. This is in Numbers chapter 12, verses 13 through 15. And Moses, who the Lord uses as an example by causing his hand to become leprous and then healed him. And this is found in Exodus chapter 4, verses 6 through 7. और हम जब मूसा के नियम हैं उनमें कुछ बातों को देखते हैं कोड से जुड़ी हुई। यीशु मसीह जब क्रूस पर मारा गया उससे पहले पुराने नियम में हम देखते हैं 3 लोगों के बारे में जो कोड से जुड़े हुए। एक नामान जो था सीरिया जो काम करता था सीरिया के साथ में। दूसरा राजा उसके 5वें अध्याय 10 और 14 में हम देखेंगे। उसके बाद मीरियम जो मूसा की बहन थी, हालेलुया, उसमें उसके बारे में हम देख सकते हैं। और मूसा जिसको परमेश्वर ने उसके हाथों को सुखा दिया और फिर उसे चंगा किया, ये हम निर्गमन 4 अध्याय उसके 6 और 7वें में देख सकते हैं। How would you like to go to a doctor or a hospital where in all their years of practice or existence, they'd only healed 3 people? और आप ऐसी जगह पर जाना चाहेंगे, ऐसे डॉक्टर के पास या ऐसे हॉस्पिटल में जिन्होंने इतने साल प्रैक्टिस किया, इतने साल कामों को किया, लेकिन 3 ही लोगों को चंगा किया। Now, do you understand the condition of the leper who came to Jesus? He was physically sick, he was spiritually sick, he was unsaved, he was rejected, he was lonely, but worst of all, no one could find a cure for him. और यहाँ पर जो है हम कोड़ी की एक अवस्था को समझ सकते हैं कि वो शारीरिक रूप से बीमार था, आत्मिक रूप से बीमार था, ठुकराया हुआ था, अकेलेपन में था और सबसे बढ़कर बुरा बात था कि कोई उसे चंगा नहीं कर सकता था। It says the leper came to Jesus beseeching him. Now, beseeching means the leper came to Jesus pleading. और यहाँ पर इस प्रकार से है कि जो कोढ़ी था वो यीशु मसीह के पास आया और उसने उसको कहा, उसने उससे पूछा, उसने उसको कहा। Remember, the law of Moses said the leper had to stay 100 feet away from all humans. If the leper came closer, he could be put to death. The leper didn't care. He approached Jesus because he was so desperate. He was determined to come to Jesus, even if it meant his death. He had nothing to lose. और यहाँ पर हम देख सकते हैं जो मूसा का जो नियम था, उस मूसा ने जो नियम उसमें लिखे हैं, उसमें देख सकते हैं कि जो कोढ़ी था उसको 100 फीट दूर रहना था हर एक व्यक्ति से। यदि वो उनके करीब आया तो उस मृत्यु की एक सजा थी। लेकिन जो यहाँ पर कोढ़ी यीशु मसीह को जो इसके पास आया, यीशु मसीह के पास जो आया, वो बहुत ही ज्यादा यीशु मसीह के लिए भूखा था, प्यासा था, उसको उम्मीद थी। उसने यीशु मसीह के करीब आया, उसने इस बात की परवाह नहीं करी कि उसको मार दिया जाएगा, उसने इस बात की परवाह नहीं करी कि वो अपने जीवन को खो देगा। Are you desperate? Come to Jesus. Are you desperate? Come to Jesus. और यदि आप उसी तरह इच्छुक हैं तो यीशु मसीह के पास आए। यदि आप उसी तरह इच्छुक हैं तो यीशु मसीह के पास आए। And kneeling down to him, this means the man recognized that Jesus was Lord. The Bible tells us that one day every knee shall bow and every tongue shall confess that Jesus is Lord. Today might as well be the day that you bow your knee to Jesus and confess he is Lord. और वहां पर हम देखते हैं वो झुक गया और उसने ये दिखाता है कि उसने यीशु मसीह को परमेश्वर की तरह देखा। और बाइबल कहती है कि हर एक घुटना झुकेगा, हर एक जीभ अंगीकार करेगी कि यीशु मसीह परमेश्वर है। और
हो सकता है कि आज वो दिन है कि आपका घुटना परमेश्वर के सामने झुके और आप परमेश्वर को कहें कि आप मेरे परमेश्वर हैं। The leper said unto Jesus, if thou wilt, thou can make me clean. If thou wilt, thou can make me clean. The leper knew that Jesus could make him clean. Do you know that the leper can make you clean and heal you? The leper did. Do you? और ये जो कोढ़ी था उसने यीशु मसीह से कहा, यदि तू चाहता है तो मुझे चंगा ये तो मैं तो मुझे शुद्ध कर, यदि तू चाहता है तो मुझे चंगा कर, मैं ठीक हो जाऊं। क्योंकि ये जो कोढ़ी था वो जानता था यीशु मसीह उसे शुद्ध कर सकता है। तो क्या आप जानते हैं यीशु मसीह आपको शुद्ध कर सकता है, चंगा कर सकता है। तो इसीलिए जो कोढ़ी है वो यीशु मसीह के पास गया। तो क्या आप यीशु मसीह के पास जाएंगे? The scripture says that Jesus was moved with compassion, and he put forth his hand and touched the leper and said unto him, I will, be thou clean. और वचन में लिखा है यीशु ने तरस खाकर अपने हाथ को उसकी ओर बढ़ाया और उसे छूकर कहा, मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा। Do you understand what Jesus did? He touched the leper. He touched the man that no one else would touch. He touched the man with the missing fingers and toes that everyone else rejected. और यहाँ पर आप समझ सकते हैं यीशु मसीह ने क्या किया, उसने उस कोढ़ी को छुआ, उस मनुष्य को छुआ जिसे किसी और जो जिसे कोई और नहीं छू सकता था। उसने उस व्यक्ति के शरीर के त्वचा को छुआ जहाँ पर उँगलियां और शायद पैर की उँगलियां नहीं थी, मिसिंग थी और शायद बदबू थी उसके शरीर में, जिसे सब ने ठुकराया, उसे परमेश्वर ने छुआ। Maybe because of your sin, you felt you are so ugly to God that God will reject you. This is not true. Jesus touched the leper. Maybe you have felt so hurt and rejected by people that no one can touch you. This is not true. Jesus touched the leper. Jesus is stretching out his hand to you right now. He wants to touch you. He wants to heal you. He wants to save you. Jesus will not reject you. Come to Jesus now. और हो सकता है आप अपने पापों को देखकर सोचे कि मैं तो बहुत ही बुरा हूँ परमेश्वर की नजर में, इसलिए परमेश्वर मुझे जो है रिजेक्ट कर देगा। लेकिन ये बात सच नहीं है। यीशु मसीह ने जो है कोढ़ी को छुआ। और कई बार आप अपने हृदय में सोचते होंगे कि लोगों ने मुझे छोड़ दिया, त्याग दिया, कोई मुझे छूता नहीं है, कोई मैं किसी के लायक नहीं हूँ। लेकिन ये सच बात नहीं है। यीशु मसीह ने उस कोढ़ी को छुआ, यीशु मसीह ने अपने हाथ को बढ़ाया और छुआ और कहा, और इसी प्रकार मसीह अपने हाथों को आपकी ओर बढ़ाता है। वो आपको छूना चाहता है, वो आपको चंगा करना चाहता है, वो आपको बचाना चाहता है, वो आपको ठुकराना नहीं चाहता। आज आप यीशु मसीह के पास आए। Jesus said to the leper, I will, be thou clean. I love when Jesus says, I will. It gets me excited. When Jesus says, I will, it's as good as done. और यीशु मसीह ने उससे कहा, मैं चाहता हूँ कि तू शुद्ध हो जाए। और जब मैं इस बात को पढ़ता हूँ, ये मुझे बहुत ही उत्तेजित करता है, खुशी देता है। हालेलुया! क्योंकि यीशु मसीह चाहता है हमारे लिए अच्छा करना, हमारे लिए उत्तम बातों को करना। There are hundreds of I wills in the Bible. I will never leave you or forsake you. I will heal you. I will deliver you. I will stretch out my arm of salvation. I will, I will. If you come to Jesus, he will, he will, he will. The leper came to Jesus and he was instantly and completely healed and cleansed. और यहाँ पर हम देखते हैं ऐसी बहुत सारी बातों को परमेश्वर ने हमारे लिए चाहा है। जैसे कि उसने कहा, मैं ना छोड़ूंगा ना त्यागूंगा, मैं चाहता हूँ तुम चंगे हो जाओ, मैं चाहता हूँ कि तुम छुटकारा को पाओ, मैं अपने हाथों को, अपने उद्धार वाले हाथों को बढ़ाऊंगा, मैं करूंगा, मैं बढ़ाऊंगा। ऐसे बहुत सारे बातों को परमेश्वर ने कहा। यदि आप परमेश्वर के यीशु मसीह के पास आते हैं तो वो जरूर से करेगा। वो आपको छुएगा, वो आपको बढ़ाएगा, वो आपको चंगा करेगा। Jesus told the leper not to tell anyone what he did, but the leper could not help himself. He told everyone. And now I'm telling you what the leper did, or what Jesus did for the leper.
और यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह के पास वो कोढ़ी आया, वो तुरंत और पूरी तरह चंगा और शुद्ध हो गया। यीशु मसीह ने उससे कहा कि तू किसी को ना बताना, लेकिन जो कोढ़ी था वो खुद को रोक नहीं पाया, उसने सबको बता दिया। और आज मैं आपको बताता हूँ, यीशु मसीह के पास आए और वो खरेगा। Come to Jesus and he will. Come to Jesus and he will. Come to Jesus and he will. और ये आप यीशु मसीह के पास आए, वो करेगा, वो चंगा करेगा, वो छुटकारा देगा। आप यीशु मसीह के पास आए, वो आपको शुद्ध करेगा, आपको बढ़ाएगा, अपने हाथों को आपकी ओर बढ़ा के आपको छुएगा। यीशु मसीह के पास आए, क्योंकि वो कर सकता है और वो करेगा।